Hello dear student, today we will understand about GM mustard, that is genetically modified mustard. It is nothing but a similar crop like a cotton where scientists have done some genetic modification. Okay, so there are so many reasons for doing genetical modification. Like in cotton, that genetical modification was for resistance against bollworm. Okay, in brinjal, the genetic modification was resistance against, let's say, borer or shoot borer. But here in mustard, this genetic modification is for increasing the yield. Okay, the genetic modification is for increasing yield. So today we will understand in detail what is the genetic mustard, who developed it, and what are its benefits, and why there is a necessary to create the genetically modified mustard particularly. So actually on 18th of October 2022, Genetic Engineering Appraisal Committee, it is called as GEAC, that works under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, has recommended environmental release. It doesn't mean that it is commercially released. Environmental release means before this GM mustard was just available in the laboratory trials, but now the scientists got permission from GAC that they can take trial in the open field. Okay, of variety known as DMH11, Dhara mustard 11. Okay, that is the GM mustard for its seed production, because previously only handful of seeds were available of DMH11, that is only at lab level. But if government want to give this DMH11 to the farmer, first thing that there should be the sufficient amount of seed that government can give to the farmers. That's why government given the permission, that is GEAC given permission for the environment release only. Okay, and this will also help to get some demonstration studies. Okay, with respect to if this DMH has any harmful effect to the environment, particularly for the honeybees and other pollinating agent. Okay, that's why now it is called as only the environmental release, not a commercial release. After successful environmental release, if there is no impact on honeybees, other pollinating agent, or other unknown environmental effect, then definitely this DMH11 or GM mustard can be commercially available for the farmer in upcoming years. So guys, this is another thing I have to tell you. This is the complete planner for agriculture optional, and it is available on this telegram number on my web portal. It is just like a simply a free ebook. So many students asking so many time, sir, please give me agriculture optionals previous year questions, some reference book list and everything. It's all about. Okay, it's just free. You can download. So what is hybrid mustard? Thing I'm just telling you, or I'm explaining two things here. First thing is that hybrid, and another thing is that variety. Okay, hybrid means it is the crossing of parent P1 with parent P2, and we are getting F1, that is hybrid, which have superior character than their parents. Okay, but when it is possible to develop hybrid, when we can get cross of P1 with P2. Okay, it means that either P1 will be female, or P2 will be male, or P2 will be female, or P1 will be male. But thing with this mustard is that mustard is a bisexual plant. Bisexual plant means it has both sex in a one flower. एक ही flower में उसके दो sex हैं. And you know that by seeing this diagram you can identify that the flowers are very small. If you want to make
In this bisexual plant, it means that they have a male and female sex. If you want to make this plant female, it means that we have to remove male part from this P1, then it will act as a female. Okay, and we have to drop some pollens from the P2 to P1, or if you want to make P2 as a female, we have to remove the male part from P2. But practically it is almost impossible because flower is very minute. Okay, and it may get damaged at the time of emasculation. Removal of male part is known as emasculation. So that's why there were means almost नो वैरायटी हाइब्रिड हाइब्रिड वैरायटीज में पॉसिबल ही नहीं थी करना, क्योंकि बहुत माइन्यूट थिंग है। इसलिए यहाँ पे क्या है, ओनली वैरायटीज। वैरायटीज का मतलब है जो नेचुरल पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर उसमें कुछ सिलेक्शन करके चेंज आते तो दैट इज ओनली ऑप्शन अवेलेबल विद द साइंटिस्ट। बट नाउ व्हाट हैपन, scientists have developed the technology where we can develop directly sterile plants with the help of some added genes. So that is what I am going to teach you today. Just before that, just understand this basic about the hybrids. Hybridization में क्या होता है, particularly I already told you, टू जेनेटिकली डिसिमिलर वैरायटीज, है ना। प्लांट को क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं सेम स्पेसीज के, है ना। और इनका जब F1 आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उसकी हायर ईल्ड होगी। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बोला है कि ये यहाँ पर बहुत इम्पॉसिबल हो गया था बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि एग्स अगर हमें फर्टिलाइज करने हैं विद स्पेसिफिक पोलन, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो कॉटन है, मेज है, टोमेटो, यहाँ पे फ्लावर थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो यहाँ पे हम हाथों से इमेस्कुलेशन कर सकते हैं, फिजिकल इमेस्कुलेशन पॉसिबल है, लेकिन मस्टर्ड में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने जीएम मस्टर्ड बनाया। कहाँ पर, द दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है, देखो इसका नाम है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन फॉर द क्रॉप प्लांट, CGMCP, है ना। इन्होंने DMH11 बनाया। तो कैसे बनाया, देखो ये साइंटिस्ट जो है ये लेबोरेटरी के, इन्होंने दो जीन को आइसोलेट किया। ओके, दैट जीन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया ऑलरेडी सॉइल में अवेलेबल है। इसका नाम है बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियन। इससे दो जीन को उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया। फर्स्ट जीन का नाम है बार्नेज, है ना, जो कि कुछ एक प्रोटीन को सीक्रेट करता है, एंड दैट प्रोटीन impairs the production of pollen. Okay, impair the production of pollen and render plant into which incorporated the male sterility, है ना। लेट से अगर ये वाला आपका प्लांट है और इसके बॉडी में कौन सा, लेट से बार्नेज है ना, बार्नेज नाम का अगर जीन है ये प्लांट में, इसका मतलब ये है जो भी इसको फ्लावर आएंगे, इसमें जो फ्लावर्स है ऑल विल बी द मेल स्टराइल। मेल स्टराइल का मतलब क्या है, इस ये फ्लावर में का मेल पार्ट काम नहीं करेगा। एंड नेचुरली अगर ये मेल पार्ट काम नहीं करता है और फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब है ये ओनली एज अ फीमेल एक्ट करेगा। गॉट इट, ओनली एज अ फीमेल। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरे प्लांट से हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, हम दूसरे प्लांट से मेल प्लांट पोलन लेके इस पे लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, इसे बोलते हैं हम मेल स्टेरिलिटी, ये बार्नेस का काम है। दूसरा, दिस प्लांट इज देन, ये वाला जो प्लांट है इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस विद द फर्टाइल पेरेंटल लाइन कंटेनिंग इन टर्न द सेकंड बार स्टार जीन। देखो अब हम क्या करना है, हमें दूसरा एक प्लांट लेना है, इसमें कौन सा जीन लगाना है, बार स्टार। ये जेनेटिक कैसा जीन इंसर्शन होता है बाद में मैं किसी और दिन आपको पढ़ाऊंगा, बस अभी ध्यान रखो बार स्टार होगा। अब क्या होगा, देखो ये प्लांट में है बारनेस और इसमें है, इसमें बारनेस और इसमें है बार स्टार। देखो अब ये दोनों का जब क्या आएगा, हमारे पास क्या होगा, दोनों का F1 बनेगा। तो F1 में क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पर ये वाली केस में F1 में ये जो F1 बनेगा इसकी ईल्ड होगी वेरी हाई, इसकी ईल्ड क्या होगी, हाई होगी। लेकिन F1 में जो पेरेंट इसमें था बारनेज और इसमें था बार स्टार,
ये क्या करेगा, बार स्टार जो इसमें था, जब F1 में ये बार्नेस को न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब है जब F1 आपका प्रोड्यूस होगा, इसमें यील्ड भी हायर होगी और बार्नेज की वजह से जो स्टर्लिटी आ रही थी वो नहीं आएगी, वो क्या बनेगा, फर्टाइल बनेगा। ओके, so resultant F1 progeny is both high yielding and also capable of producing seeds or grain, okay, thanks to bar star gene in the second fertile line। ये क्या कर रहा है, ये हमें ग्रेन भी दे रहा है और वो क्या बनने वाले हैं, वो फर्टाइल भी बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब ये वाली केस में क्या हो गया, हम ये दोनों लगाने का मकसद यही था हमारा, F1 अब बन गया हमारा, बस इसको क्या करना है, बाद में मेंटेन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या पता है, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, इसमें दोनों भी सेक्स काम करेंगे। लेकिन जो चेंज चाहिए था हमें ईल्ड वाला, जैसे कि मान लो ये वाले जो फर्स्ट वैरायटी, इसकी ईल्ड थी लेट से 8 क्विंटल पर हेक्टर और इसकी कितनी थी, 12 क्विंटल पर हेक्टर। ओके, सो प्रोबेबली इसकी ईल्ड हो सकती है 20 क्विंटल पर हेक्टर। एक बार हमें इसकी सीड मिल गई, उसको क्या करना है, बस मेंटेन करना है आगे जाके, अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो स्टर्लिटी जो आ गई थी बार्नेस की वजह से, वो बार स्टार ने खत्म कर दी है। और यहाँ पे अब कोई इश्यू है क्या, नहीं है। बस हमें क्या करना था, क्रॉस करने के लिए हमने ये दो जीन का यूज किया था, ओनली क्रॉस करने के लिए, बाकी उसका कोई मीनिंग नहीं था। इसका मतलब है सेम टेक्नोलॉजी को हम यूज करके बाद में डिसीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट इसमें ला सकते हैं। ओके, तो ये आपको ये चीज समझ में आ गई है, बार्नेज और बार स्टार क्यों यूज किया। तो यहाँ पे और देखो, साइंटिस्ट का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि ये डिप्लॉयमेंट ऑफ बार्नेज बार स्टार जीएम टेक्नोलॉजी टू क्रिएट व्हाट इट सेड एट रॉबस्ट, जो क्या बोलते हैं, एंड वायबल हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम में इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे उसके अलग अलग हम यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए, किसी पेस्ट के लिए, किसी डिसीजेस के लिए कर सकते हैं। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टू बी डेवलप DMH11 में इसका यूज हुआ है ना। यहाँ पर उन्होंने वरोना नाम की वैरायटी यूज की थी जिसमें बार्नेज यूज किया, एंड ईस्ट यूरोपियन एक वैरायटी है अर्ली हीरा 2। ओके, ये वैरायटी थी, इसमें बार स्टार ये दोनों का क्रॉस किया था। और ये दोनों का क्रॉस करने के बाद, जैसे देखो वरुणा, ओके, और इसका क्रॉस किसके साथ किया उन्होंने, हीरा 2, अर्ली हीरा 2। और हमें क्या मिल गया बेटा, DMH11, ये फोन जो मिला उसको हमने नाम दिया DMH11। ओके, व्हाट इज इट स्पेसिफिसिटी क्या है, ये दोनों भी पेरेंट के कंपैरिजन में इसमें 28% ईल्ड ज्यादा आती है। ओके, ये वाला जो साइंटिस्ट है ICAR के, उन्होंने बताया कि 28%। इसका मतलब है अब आगे जाके जो ऑयल ओवरऑल सीड प्रोडक्शन है या तो ओवरऑल प्रोडक्शन मस्टर्ड का बढ़ने वाला है। ओके, तो ये GAC क्या है जिसका हमने बहुत बार नाम लिया, देखो ये बॉडी होती है रिस्पॉन्सिबल, जो कि इन्वायरमेंट में अगर आपको कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट को रिलीज करना है, इसका अप्रेजल लेना, इसकी परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इन्होंने क्या बोला है कि अब प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग के लिए, है ना, सीड प्रोडक्शन टेस्टिंग के लिए हम इन्वायरमेंटल रिलीज के लिए परमिशन दे देते हैं। ओके, इट मीन दैट इट हैज गिवन ग्रीन सिग्नल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। आप बोलोगे फिर फार्मर को क्यों नहीं दिया, बेटा अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सीड ही हमारे पास नहीं है तो फार्मर को हम कैसे देंगे। Okay, it means that if we are getting good amount of seed from this environmental release, okay, then this seed will be collected and distributed among the farmer in upcoming years। इसका मतलब ये थोड़ा ग्रीन सिग्नल है, ये फर्स्ट स्टेप है toward the commercialization of the GM mustard। So GAC also recommended that environment release of DMH11's parent line, okay, carrying the Barnase and Bar Star, for them is used to be develop new hybrid बन सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लो यहाँ पे DMH11 में हायर यील्ड हो गई है ना, क्योंकि इंडिया में जो वैरायटी है मस्टर्ड, इनका जो जेनेटिक बेस है बहुत कम है, ओनली फ्यू वैरायटीज है। अगर इसको हम ठीक से यूज करेंगे बार्निस बार स्टार सिस्टम को, तो वाइडर रेंज ऑफ हम अलग अलग हाइब्रिड्स बना सकते हैं, जैसे कि यूरोपियन ओरिजिन का हीरा है, डॉन्स कैजा है। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट को इकट्ठा ला सकते हैं, साथ में ला सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स रिलेटिंग टू, ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि बहुत सारा जो अल्टरनेरिया ब्लाइट का प्रॉब्लम आता है, स्टेम रॉट का प्रॉब्लम आता है। ओके,
कैनोला ऑयल की जो क्वालिटी है, जैसे कि मान लो जीरो यूरेसिक एसिड, उसके बाद में ग्लूकोसाइनोलेट्स, ओके। तो इनका बहुत बार हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इनका अगर इम्पैक्ट हमें कम करना है तो ये बार्नेस बार्क स्टार सिस्टम अच्छे से यूज हो सकती है, ऐसा दीपक पेंटॉल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उन्होंने कहा है। ओके, इन्होंने ये जो टीम थी 2002 में उसको लीड किया था जब ये DMH11 बना था। जो लेट से कि DMH11 के देखो इसकी डेवलपमेंट 2002 में हुई थी ऑलमोस्ट, अभी 2022 में रिलीज होने जा रहा है। इसका मतलब इट इज टू मच डिले, ओके, फॉर टेकिंग द ट्रायल्स। इवन दो अगर लास्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होगा तो ये फार्मर को कब तक अवेलेबल हो सकता है? देखो, when there is a no environmental impact on honeybee or pollinating agent and other that जो potential threats है, अगर उस पे कोई भी impact नहीं है, तो probably in upcoming 2-3 years we can get GM mustard as a second commercial crop in India। पहला कमर्शियल कौन सा क्रॉप है बेटा जो रिलीज हुआ है? कॉटन है, ओके, वो कमर्शियल में है। एंड फर्स्ट फूड क्रॉप, क्योंकि इसको खाया जाता है, कॉटन को हम ईट नहीं करते, फर्स्ट फूड GM क्रॉप होगा ये इंडिया का। सो इट्स ऑल अबाउट द GM मस्टर्ड। तो देखिए, अनअकैडमी इज कमिंग अप विथ one batch for the UPSC CSE 2023. This batch is bilingual, and this batch is means conducted by top educators of India at an academy. Already started on the 27th of October. You can join if you want to join this batch for UPSC CSE 2023. You can dial this number. An academy is consistently providing very good results in UPSC CSE. In 2020, almost 170 plus topper was from an academy. In 2020-21, 197 toppers are from an academy. Okay, means top rank like All India rank 3, 4, 5, they belongs to an academy. Okay, guys. Also, most of the students have fear that whether they will clear this CSAT paper or not. If the same type of question is in your mind, you can join this CSAT course. It is just only about, the cost is only 8,099 rupees and extended till October 31st 2022 है ना, तब तक ये ऑफर थोड़ी अभी एक्सटेंड, इसका मतलब है टुडे इज 30, आप कल तक इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपको ये ऑफर को अवेल करना है, आपको एक सिंपली कोड पुट करना है जिसका नाम है, कोड का नाम है कृष्णा सर। ओके, कृष्णा सर थोड़ा कोड यूज कीजिए आप सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल प्राइस पे। ठीक है गाइस। Another thing is that if you want to get rewarded and get boosted by taking some prizes from an academy, there is a an academy वाला एक चैंपियनशिप का एक स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है 13 नवंबर को, जिसमें बस आपको 50 MCQ सॉल्व करने हैं। ओके, इन 60 मिनट्स में अगर आप टॉप करते हो तो आपको अच्छे अच्छे अवार्ड मिलेंगे, जो कि आपको IAS और IPS का ड्रीम अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। Also, Unacademy is coming up with optional carnival. I think around, let's say, political science, pub-ad, mathematics, history, sociology, Hindi literature, psychology, anthropology, agriculture. All these optionals are available at an academy platform. If you want to join any one of these, you can directly contact an academy on this number and get subscription of these. So, an academy is also means conduct one course for EPFO exam. There is a post known as Assistant Provident Fund Commissioner. If you are dreaming for this, you can join an academy course for the same examination, where you can get detailed exam guidance, comprehensive syllabus coverage, top educators will be there, unlimited views, end-to-end preparations. Okay, and everything will be there. So you can enroll by dialing this number. Also, देखो, in UPSC mains test series, there were around 57 questions out of 79 in the GS mains this year. Okay, because question papers are set by a very top and a specialist from an academy team. Okay, so more than 25 tests will be there, evaluation and model answer will be provided. Okay,
So you can learn and write the answer within 9 minutes. Mean that there will be the proper टाइम मैनेजमेंट में भी आपको ये टेस्ट सीरीज हेल्प करेगी, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। दूसरा है, अगर आपका यूपीएससी सीएससी का ड्रीम है बट यू आर इन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी कोर्सेज ऑन ईएमआई बेसिस, है ना। यहाँ पे आपको बस 2 घंटे में अप्रूवल मिल जाएगा। मिनिमम पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है। अगर आपको लगता है कि ईएमआई से आपको कोई भी कोर्स खरीदना है, तो आप ये नंबर डायल कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन अनअकैडमी कॉम्पीट नाम का एक इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। आप जस्ट अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको लैपटॉप और अदर प्राइज मिलने के चांस मिले भी कुछ नहीं है। पढ़ना है, स्टडी करनी है और ऐसे कॉम्पीट में पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा अर्निंग भी हो जाएगी। देन यू कैन सपोर्ट योर एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ सच एजुकेशनल कॉम्पिटिशन्स। Then another thing by Unacademy is the last mile program. Those candidates who have given 2022 mains and they are thinking that they will surely appear for the interview. Okay, so don't waste your time and join this last mile program for UPSC CSC, where there will be the डैप एनालिसिस, प्री डैप एनालिसिस। ओके, डैप एनालिसिस करना है, ऑनलाइन क्लासेस फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर स्टेट वाइज एनालिसिस होगा, मॉक इंटरव्यू सेशंस होंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, फीडबैक मिलेगा, इंटरेक्टिव सेशंस विद द प्रीवियस ईयर टॉपर्स, है ना, सर्विंग ब्यूरोक्रेट के साथ। देन हाई क्वालिटी वीडियो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओगे। और यहाँ पे पैनलिस्ट अच्छे अच्छे ब्यूरोक्राट्स हो गए, टॉप एजुकेटर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, एक्सपर्ट हो गए फील्ड के। तो आपको ये वाला जो लास्ट माइल प्रोग्राम है मेंस 2022 जिन्होंने दिया है, ये आपको हेल्प करेगा ताकि आपका प्रिपरेशन अदर कॉम्पिटिटर्स से आगे रहेगा। ओके, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट स्टार्ट देयर इंटरव्यू प्रिपरेशन ओनली आफ्टर द रिजल्ट, but if you are sure that you have performed better in the mains, then you can definitely start this, so there will not be any wastage of time. So guys, another thing is that there is a feature known as doubt browse feature, जहाँ पे आपको कुछ डाउट है, बहुत बार आपको इसको स्टेप वाइज वीडियो सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल है GS 2021 PYQ के। आपको क्या करना है, बस ये वाले ऐप पर जाना है, डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाके क्लिक करना है। ओके, अनअकैडमी ऐप पर, फिर पास्ट एग्जाम प्रीवियस एग्जाम पर जाके क्लिक करो और यहाँ पे जो भी कुछ डाउट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको वहाँ पे उसका वीडियो मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू इन नेक्स्ट सेशन with the new current affairs topics on agriculture. Thank you.